Hello students, I am Dr. Vimal Modi, Professor and Head of the Department in Anatomy. Today we study about the scapular region and we will study it in two parts. In first part, we study about the scapulohumeral muscles. The scapulohumeral muscles arises from the scapula and they are inserted over the humerus bone. Today we study part 1 in scapulohumeral muscle and in part 2 we later on cover the rest of the portion of this scapular region. Today we study the scapular region. स्केपुला बोन पे अटैच होने वाले मसल्स जो कि ह्यूमरस पे जाते हैं वो स्केपुलर रीजन के मसल्स कहलाते हैं. These muscles include deltoid muscle, the supraspinatus muscle, the infraspinatus muscle, the teres minor muscle, the subscapularis muscle, and teres major muscle. Now I will tell you about one by one. Deltoid muscle. Deltoid muscle arises from the lower border of the tip of the crest of the spine. This is the lower border of the crest of the spine. Deltoid muscle arises from the lower border of the crest of the spine of scapula and also from the lateral border of the acromion process. This is the crest of the spine on the dorsal aspect of the scapula. लोअर बॉर्डर से इसके अराइज होता है डेल्टॉइड मसल और जो कि लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन से भी अराइज होता है. नाउ सेकंड मसल इज supraspinatus muscle. Supraspinatus muscle arises from this supraspinous fossa. Above the spine is supraspinous fossa. Supraspinous fossa यहाँ से अराइज होता है supraspinatus muscle स्केपुला के डॉर्सल सरफेस से. Then the next muscle is infraspinatus muscle. Infraspinatus muscle arises from the infraspinous fossa. This infraspinous fossa से infraspinatus muscle अराइज होता है. देन इसके बाद है टीरीस माइनर मसल. टीरीस माइनर मसल अराइज होता है अपर 2/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला. अपर 2/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला. दिस स्केपुला बिलोंग्स टू द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड की स्केपुला है क्योंकि ग्लिनोइड एंगल लाइज on the lateral side and the medial border vertebral border lies medially and inferior angle is directed inferiorly and superior angle is directed superiorly. Costal surface is ventral and dorsal surface which bears spine is facing posteriorly. So deltoid muscle, supraspinatus muscle, infraspinatus muscle, then teres minor muscle from the lateral border above and teres major muscle from the lower lateral border of the scapula from below. अपर 2/3 से teres minor muscle अराइज होता है और लोअर 1/3 से lateral border से teres major muscle अराइज होता है. Origin anterior border of lateral 1/3 of clavicle. डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल के एंटीरियर बॉर्डर से. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन, लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन से भी अराइज होता है. लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन से भी अराइज होता है डेल्टॉइड मसल. लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन वेयर 4 सेप्टा ऑफ ओरिजिन अटैच्ड एंड लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला. नर्व सप्लाई. डेल्टॉइड को नर्व सप्लाई होता है एक्सिलरी नर्व के द्वारा. एक्सिलरी नर्व और सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल नर्व इज अ ब्रांच फ्रॉम पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड इट सप्लाइज द डेल्टॉइड मसल. व्हेन अब क्लिनिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं इसका आपको अप्लाइड एनाटॉमी. व्हेन इन सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, the humerus belongs to the left side and this is the surgical neck of the humerus. Surgical neck of humerus separates the upper part of the humerus from the rest of the shaft. This surgical neck of the humerus is related with the axillary nerve. In the axillary nerve injury due to the
injury to the surgical neck of humerus, there will be flattening of the shoulder due to paralysis of the deltoid muscle, because axillary nerve supplies the deltoid muscle. Posterior spinous fibers are the extensors and lateral rotators of the arm. अब इसकी मेन एक्शन क्या है डेल्टॉइड की? द डेल्टॉइड एक्रोमियल फाइबर, जो एक्रोमियल प्रोसेस से डेल्टॉइड के फाइबर्स आते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एब्डक्टर्स फ्रॉम बिगिनिंग 15 to 90 डिग्री ऑफ एब्डक्शन एट शोल्डर. 15 to 90 डिग्री एब्डक्शन एट शोल्डर. स्केपुलोह्यूमरल मसल्स इसलिए बोलते हैं इनको, बिकॉज दे अराइज फ्रॉम द स्केपुला एंड दे आर इंसर्टेड इनटू द ह्यूमरस. डेल्टॉइड हो गया, सुप्रास्पाइनेटस हो गया, इंफ्रास्पाइनेटस हो गया, सब स्केपुलारिस मसल हो गया, स्केपुलोह्यूमरस मसल, टीडिस माइनर मसल हो गया, टीडिस मेजर मसल हो गया, टीडिस मेजर मसल हो गया. अब डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन होता है ओरिजिन यहाँ पर हुआ डेल्टॉइड मसल का स्केपुला और क्लेविकल से, और इसका इंसर्शन हो रहा है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस पे. डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस पर इसको नर्व सप्लाई होता है डेल्टॉइड को एक्सिलरी नर्व से. ये देखिए आप डायग्राम में भी, ये क्लेविकुलर फाइबर से रेड कलर से डेल्टॉइड मसल की ये लेटरल मार्जिन ऑफ एक्रोमियन से ओरिजिन हो रहा है, और ये क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला से ओरिजिन हो रहा है डेल्टॉइड मसल का, जो कि स्पाइन ऑफ स्केपुला का पार्ट है. क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला. ये क्लेविकल का पार्ट है, इंटीरियर बॉर्डर लेटरल 1/3 की, और ये लेटरल मार्जिन ऑफ एक्रोमियन है, और इनका इंसर्शन हो रहा है शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे, ब्लू कलर से जो बता रखा है, और ये है शेफ्ट पे इसका इंसर्शन, मिडिल ऑफ द शेफ्ट पे ये है डेल्टॉइड का इंसर्शन. तो इसमें जो क्लिनिकल बता रहा हूँ अब इसको, इसके अपर हाफ में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है डेल्टॉइड के. इट इज वन ऑफ द साइट फॉर गिविंग इंजेक्शन इन द आर्म, अपर साइड ऑफ द डेल्टॉइड, टू प्रिजर्व इंजुरी टू एक्सिलरी नर्व. फाइबर्स देयर आर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे इंसर्शन है, तो ये यूनिपिन्नेट फाइबर्स होते हैं, यूनिपिन्नेट एंटीरियर फाइबर्स होते हैं, यूनिपिन्नेट पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं, और मल्टीपिन्नेट फाइबर्स होते हैं जो एक्रोमियन फाइबर्स होते हैं डेल्टॉइड के. डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे इसका इंसर्शन होता है. Multipinnate middle part arise from 4 septa. They converge on 3 septa of insertion which are attached to deltoid tuberosity. Due to this arrangement, middle acromial part of deltoid is strongest. Multipinnate arrangement होने के कारण strongest होता है. The abduction of arm, shoulder 15 to 90 degree होता है. ये बहुत important question है for the first year MBBS student. एब्डक्शन एट शोल्डर इनिशिएट कौन कराता है? 0 to 15 डिग्री एब्डक्शन कौन कराता है? 15 to 90 डिग्री एब्डक्शन एट शोल्डर कौन कराता है? और 19 to 120 डिग्री एब्डक्शन एट शोल्डर कौन कराता है? तो 0 to 15 डिग्री एब्डक्शन कराता है, इनिशिएशन ऑफ एब्डक्शन कराता है सुप्रास्पाइनेटस मसल. सुप्रास्पाइनेटस मसल इनिशिएट कराता है, और फिर 15 to 19 डिग्री इसका एब्डक्शन कराता है डेल्टॉइड मसल कराता है. और ट्रेपेजियस और सिरेटस एंटीरियर मसल 90 to 180 डिग्री एब्डक्शन एट शोल्डर जॉइंट कराते हैं. 90 to 180 डिग्री सिरेटस एंटीरियर मसल कराता है, और दूसरा ट्रेपेजियस मसल कराता है ओवरहेड एब्डक्शन. अब देखिए ये थोड़ी नोटिस करने वाली बात है, ये सुप्रास्पाइनस फोसा से सुप्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन हो रहा था. सुप्रास्पाइनस फोसा से सुप्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन हो रहा था. इंफ्रास्पाइनस फोसा से इंफ्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन हो रहा था. और दिस इज सुप्रास्पाइनस फोसा, यहाँ से सुप्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन हो रहा था.
दिस इज इंफ्रास्पाइनस फोसा। यहाँ से इंफ्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन हो रहा था। ये बॉल एंड सॉकेट वेराइटी का साइनोवियल जॉइंट बना बिटवीन द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। बॉल एंड सॉकेट वेराइटी का जॉइंट। अब यहाँ पर एक ट्यूबरोसिटी रहती है पोस्टेरोलेटरली अपर एंड ऑफ ह्यूमरस पे, उसको बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर ट्यूबरकल। इस पे 3 इंप्रेशन होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर इंप्रेशन। अपर इंप्रेशन पे इंसर्शन होता है सुप्रास्पाइनेटस मसल का, मिडिल इंप्रेशन पे इंसर्शन होता है इंफ्रास्पाइनेटस मसल का, और लोअर इंप्रेशन पे इंसर्शन होता है टीडिस माइनर मसल का। और जो लेसर ट्यूबरकल है उस पे इंसर्शन होता है सब स्केपुलारिस मसल का। सब स्केपुलारिस मसल का ओरिजिन होता है सब स्केपुलर फोसा से, और उसका इंसर्शन होता है सब स्केपुलारिस मसल का लेसर ट्यूबरकल पे। और ग्रेटर ट्यूबरकल के 3 इंप्रेशन है, अपर पे सुप्रास्पाइनेटस, मिडिल पे इंफ्रास्पाइनेटस और लोअर पे टीडिस माइनर मसल का इंसर्शन है। तो ये एक और क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको बता रहा हूं कि शोल्डर जॉइंट is surrounded all around by muscles. Its capsule is merges with the tendons of the supraspinatus muscle, infraspinatus muscle, teres minor muscle and subscapularis muscle. So it forms a musculotendinous cuff or rotator cuff all around. इस पे क्वेश्चन आता है थ्योरी में रोटेटर कफ पे। तो but it gives strength to the shoulder joint all around, but it is deficient inferiorly. So shoulder joint dislocates inferiorly commonly, and it is more mobile joint in comparison to hip joint. Hip joint is more stable in comparison to shoulder joint. इस डायग्राम में भी आप नोटिस कर सकते हैं, ये सुप्रास्पाइनस फोसा से सुप्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन हुआ, और ये ग्रीन कलर से इसका इंसर्शन सुप्रास्पाइनेटस मसल का अपर इंप्रेशन पे। ये इंफ्रास्पाइनस फोसा से इंफ्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन हुआ, और इसका इंसर्शन मिडिल इंप्रेशन पे इंफ्रास्पाइनेटस पे टेंडन का इंसर्शन हुआ। ये देखिए टीडिस माइनर मसल का ओरिजिन, टीडिस माइनर मसल का ओरिजिन, इनका ओरिजिन हो रहा था लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला से, जो कि थिक बॉर्डर है स्केपुला की, वहां से अपर 2/3 से टीडिस माइनर का ओरिजिन हो रहा था, लोअर 1/3 से टीडिस मेजर का ओरिजिन हो रहा था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये टीडिस माइनर का यहाँ पर भी ओरिजिन हो रहा है और यहाँ पर भी ओरिजिन हो रहा है, तो गैप क्यों है? ये गैप इसलिए है कि यहाँ पर सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर वेसल का इंटरप्शन हो जाता है। The origin of the teres minor muscle from the lateral border of the scapula is interrupted by circumflex scapular vessels, subscapular vessels. और ये teres major का ओरिजिन है, इसका इंसर्शन होता है मीडियल लिप ऑफ दी बाइसिपिटल ग्रूव। ये मीडियल लिप है, ये लेटरल लिप है, और ये फ्लोर है बाइसिपिटल ग्रूव का या इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का। ब्लू कलर से इंसर्शन है मीडियल लिप पे, किसका इंसर्शन है? टीडिस मेजर मसल का। कौन से मसल का इंसर्शन है? टीडिस मेजर मसल का। तो हमने सुप्रास्पाइनेटस मसल का इंसर्शन ओरिजिन देगा, इंफ्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन इंसर्शन देगा, टीडिस माइनर मसल का ओरिजिन इंसर्शन देगा, और हमने टीडिस मेजर मसल का ओरिजिन इंसर्शन दिया। अब ये देखिए आप सब स्केपुलारिस मसल का, ये बताया था मैंने आपको सब स्केपुलर मसल, स्केपुलारिस मसल जो है सब स्केपुलर फोसा से अराइज होता है, और इस सब स्केपुलर फोसा से जब ये अराइज होता है तो इसका इंसर्शन लेसर ट्यूबरकल पे होता है, जो कि ह्यूमरस के अपर एंड पे एंटीरियरली प्रोजेक्ट करती है बोनी बम्प, उसको लेसर ट्यूबरकल बोलते हैं। वहां पर ये सब स्केपुलर फोसा से अराइज हो रहा है, जो सब स्केपुलारिस मसल, उसका इंसर्शन होता है सब स्केपुलारिस मसल। मस्कुलोटेंडिनस कफ या रोटेटर कफ, जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था, ऑफ द शोल्डर जॉइंट। इट इज अ फाइब्रस शीथ अराउंड द शोल्डर जॉइंट। इट इज फॉर्म्ड बाय फ्लैटेंड टेंडन्स ऑफ 4 मसल्स व्हिच ब्लेंड विद द कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट। कौन कौन से 4 मसल्स के टेंडन है? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीडिस माइनर और
subscapularis. सुप्रास्पाइनेटस सुपीरियरली इंसर्ट होता है, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर पोस्टीरियरली स्टेबिलिटी देता है मस्कुलोटेंडिनस कप को. सबस्केपुलारिस एंटीरियरली प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ to capsule of the shoulder joint all around except inferiorly. For this reason, dislocation of shoulder joint commonly occurs inferiorly. अब ये डायग्राम देखिएगा आप. इसके अंदर ये आपकी ग्लिनोइड कैविटी है. यहाँ पर ये देखिए ये सबस्केपुलारिस मसल का इंसर्शन हो रहा है. ये सुप्रास्पाइनेटस का है, ये इंफ्रास्पाइनेटस का है और ये टीरिस माइनर का है. ये कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट से मर्ज हो गए और ये जॉइंट कैविटी है शोल्डर जॉइंट की. गैप इन द जॉइंट कैप्सूल फॉर सबस्केपुलर बर्सा. बर्सा प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ जॉइंट. ग्लिनोइडल लेब्रा में जो ग्लिनोइड कैविटी को डीप करता है, शेलो ग्लिनोइड कैविटी को डीप करता है ताकि ये हेड ऑफ द ह्यूमरस को अकोमोडेट कर सके. ये कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट है. दिस इज द capsule of shoulder joint. So this is part 1 about the scapular region. In the next session we study the part 2 of the scapular region, in which we study the intermuscular spaces, upper triangular space, lower triangular space and quadrangular space and their contents and boundaries. For more useful content on anatomy, subscribe my channel, like my videos, keep the notification button on. And if you have any doubts in today's session, do let me know in comments. Thank you.